Hello students, good morning. Now welcome in our English online classes. Students, we are revising our chapters as well as our poems from Beehive book of our English literature. Today we shall revise our chapter first. I think we have we have read this chapter in 8th class. So it is not so necessary that we should discuss the summary of this chapter again. Here we shall have 25 MCQ type question. So we shall discuss the answer of those MCQ type question, and I take back you in past as we read the story in 8th class as well as while discussed this story before summer break. At that time I told that Margie and Tommy, here two little children are there. Margie is having 11-year age and Tommy is having 13 years age. And both of the students are from future world, and this story is telling us that one day Tommy found a book and he was reading that book. Margie asked Tommy to show her that book. वो बुक दिखाने के लिए उससे रिक्वेस्ट की. So Tommy showed that book and Margie was so surprised to see such type of book as we have today. And because she and Tommy didn't have such type of book, they had telebook. Their books were available on TV screen. They could see the books from there by passing the order to the computer. Now, both of them were so surprised, and Margie had a fault in her computer because her geography sector had become fast, due to which it was taking टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जोग्राफ़ी. और मार्गी का जो कंप्यूटर टीचर था उसके जोग्राफ़ी सेक्टर में कुछ फॉल्ट आ गया था, जिसके कारण वो ज़्यादा ही ज़्यादा जोग्राफ़ी के क्वेश्चन या टेस्ट पेपर लिए जा रहा था और मार्गी का जो रिज़ल्ट था वो बेकार ही बेकार आता जा रहा था. सो ड्यू टू दैट रीज़न मार्गीज मदर कॉल्ड फॉर a county inspector to repair that computer teacher. County inspector came and repaired it. Margie thought that he would take that computer teacher and she would get some free time in absence of computer teacher. But county inspector repaired the teacher very soon, and in this way she became bored by getting education without any break from Monday to we can say Friday. Both of them had to attend the classes in front of the computer teacher in their own houses. So now let's see what are those MCQ. ये दोनों ही बच्चे जो है वो फ्यूचर वर्ल्ड से रिलेटेड हैं, जो 2157 में ये मार्गी जो है उस समय अपनी डायरी में लिखती है कि आज टॉमी को एक बुक मिली. इट मीन्स दीज आर द स्टूडेंट ऑफ फ्यूचर व्हेन computer teacher will be there in front of the student. No human being teacher will be there. And at one place Margie, when Tommy told Margie that in past human teacher were there, at that time Margie asked
him by saying that how a human could be a teacher. वो पूछती है कि एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है. तो इस प्रकार की ये स्टोरी है. इसको डिटेल में ना जाते हुए अब MCQ टाइप क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. Here is our first question you are watching here on the screen. To which world does the story take the reader to? ये स्टोरी जो है रीडर को किस संसार में लेकर जाती है. तो ये स्टोरी जो है रीडर को कहाँ लेकर जाती है. medieval world, ancient world, present world, future world. So the answer will be future world. This story take us in future world. Ancient प्राचीन, present वर्तमान और medieval मध्य युग का जो संसार है उसको medieval period बोलते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द वर्चुअल रियलिटी. वर्चुअल रियलिटी क्या होती है. हेवनली वर्ल्ड, स्वर्गीय संसार. रियल वर्ल्ड, वास्तविक संसार. रियलिटी क्रिएटेड बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, नन ऑफ दिस. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी NC पार्ट. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द वर्चुअल क्लासरूम. वर्चुअल क्लासरूम क्या होते हैं. अ क्लास आउटसाइड स्कूल, स्कूल से बाहर क्लास. क्लास इन द गार्डन, बगीचे में क्लास. क्लास इन द फील्ड यानी बाहर मैदान में क्लास. वेयर लर्निंग इज़ डन थ्रू अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेट. तो यहाँ पर आंसर हमारा होगा D पार्ट की फॉर्म में. यानी ऐसी शिक्षा जहाँ पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा दी जाए, वो होता है वर्चुअल क्लासरूम. व्हाट इज़ अ डिबेट. डिबेट क्या होती है. अ कॉन्टेस्ट टू शो एबिलिटी टू आर्गूमेंट बिटवीन टू पीपल. यहाँ एबिलिटी को अंडरलाइन किया है. एबिलिटी का मतलब क्या है. अक्षमता, कैपेसिटी. कॉन्टेस्ट टू रेसल, कॉन्टेस्ट टू राइट एन ऐसे, नन ऑफ दिस. So the answer of this question will be in form of A part. A part की form में. Next, who is the main character of the story. Story का main character कौन है. So here Margie is the main character. मुख्य जो character है वो Margie है, क्योंकि टॉमी जो है उसको हम main character नहीं मान सकते, क्योंकि वो कुछ देर बाद जो है स्टोरी से जो है लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है. हाउ ओल्ड इज़ मार्गी. मार्गी किस एज की है. तो मैंने बताया था वो शी वाज हैविंग 11 years ऑफ हर एज. वो 11 साल की थी. सो B पार्ट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, विच ईयर हैड द स्टोरी बीन सेट इन. ये कहानी किस साल में सेट हुई है. सो द आंसर विल बी 2157. नेक्स्ट, व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल. मार्गी स्कूल से नफ़रत क्यों करती थी. तो मशीन वर्क, लैक ऑफ फन, यानी स्कूल से इसलिए नफरत करती थी कि ये मशीन का काम था. लैक ऑफ फन यानी इसमें आनंद नहीं आता था, आनंद की कमी थी. नो फ्रेंड्स, कोई दोस्त नहीं होते थे स्कूल सिस्टम में. तो अब यहाँ बताना आपने इसका आंसर क्या होगा. तो इसके आंसर हमें फर्स्ट भी दिखाई देता है, सेकंड भी और थर्ड भी. अब ये तीनों ये हैं, तो इसका मतलब ऑल ऑफ दिस, यानी फोर्थ पार्ट विल बी द राइट चॉइस. नेक्स्ट, हु आर मार्गी एंड टॉमी. मार्गी और टॉमी कौन हैं. वो कज़न हैं, चचेरे भाई हैं, सिबलिंग, ब्रदर सिस्टर हैं, स्कूल फ्रेंड, स्कूल के दोस्त हैं, या नेबर्स. तो वो नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं. नेक्स्ट,
हाउ ओल्ड इज टॉमी? टॉमी कितना एज का है? सो टॉमी इज 13 ईयर ऑफ एज. सो बी पार्ट विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट, व्हाट डिड टॉमी फाइंड? टॉमी को क्या मिला? एन ओल्ड बुक विद येलो क्रिंकी पेज. एक पुरानी पुस्तक क्रिंकी पेज रखते हुए, पीले कलर के झुर्रियों वाले पेज रखे हुए एक पुरानी पुस्तक, या एक सफ़ेद बुक जिसमें पेज धुंधले हों, या अ ब्रांड न्यू बुक, एक बिल्कुल नई बुक जिसमें ब्राउन पेज हों, या डायरी विद फ्रेश पेजेज वाली डायरी. तो इसमें पार्ट ए विल बी द राइट आंसर. उसको एक पुरानी सी पुस्तक मिली जिसके पेज पीले पड़े हुए थे और झुर्रियों वाले थे. नेक्स्ट, वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक? टॉमी को बुक कहाँ मिली? पब्लिक लाइब्रेरी में मिली, या गार्डन में मिली, या हाउस में, या रोड साइड? तो उसको कहाँ पर मिली? घर पर, घर में. एटिक मीन्स अपर पार्ट, अपर रूम ऑफ द हाउस, घर में ऊपर का कमरा. नेक्स्ट, व्हाट वाज स्ट्रेंज अबाउट द बुक फॉर मार्गी? मार्गी के लिए ये अजीब क्यों थी? क्यों अजीब थी? तो इट्स टेक्सचर, इट्स पेजेज विच वर सो न्यू. सो सी पार्ट, आई थिंक सी पार्ट विल बी द राइट आंसर. इट्स स्टिल वर्ड्स प्रिंटेड ऑन पेपर. यानी जब वो पेजेज को पलटती थी तो जो है ऐसे जवाब उसको क्या नाम है, सेम वर्ड उसको दिखाई देते थे. हु वाज टीचिंग द स्टूडेंट इन द मॉडर्न इरा? मॉडर्न इरा में बच्चों को कौन पढ़ा रहा था? एलियन, मार्स प्लेनेट से आया हुआ कोई दूसरे ग्रह का प्राणी. एलियन का मतलब एनी क्रिएचर फ्रॉम अदर प्लेनेट, किसी दूसरे ग्रह का जीव. ह्यूमंस, ये आदमी पढ़ा रहे थे. कंप्यूटर्स या कंप्यूटर पढ़ा रहे थे, या अ मैकेनिकल रोबोट टीचर. सो आंसर विल बी डी पार्ट. मैकेनिकल रोबोट टीचर जो है उनको पढ़ा रहे थे. व्हाट इज़ टेलीबुक्स? टेलीबुक क्या होती है? एन ई बुक, एन इलेक्ट्रॉनिक बुक, बुक स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर, ऑल ऑफ दिस. तो टेलीबुक जो है इन सब को ही कह सकते हैं. तो डी जो है यहाँ ऑप्शन, दैट विल बी राइट. नेक्स्ट, वेयर वाज मार्गी स्कूल? मार्गी का स्कूल कहाँ था? इन द विलेज, ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, इन हर नेबर्स हाउस, इन अ रूम इन हर हाउस वेयर कंप्यूटर वाज सेटअप. तो मार्गी का स्कूल कहाँ पर था? इन अ रूम इन हर हाउस वेयर कंप्यूटर वाज सेटअप, यानी डी पार्ट. मार्गी का स्कूल जो है उनके घर के एक रूम में था, जहाँ कंप्यूटर रखा होता था, वही उसका स्कूल होता था. वो उसके बेडरूम के एडजेंस्ट रूम में, जहाँ उसका बेडरूम था उसके लगते हुए रूम में एक कंप्यूटर रखा होता था, वही उसका स्कूल था मार्गी का. व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न? कौन से सब्जेक्ट मार्गी और टॉमी पढ़ते थे? तो वो मैथ, साइंस, ज्योग्राफी सभी पढ़ते थे. इसका मतलब आंसर क्या होगा? डी पार्ट, ऑल ऑफ दिस. ये सब सब्जेक्ट वो पढ़ते थे. वेयर डिड टॉमी एंड मार्गी रीड वेरियस बुक? ये बहुत सारी पुस्तक कहाँ पढ़ते थे टॉमी और मार्गी? लाइब्रेरी में, स्कूल में, या कंप्यूटर स्क्रीन पर, या नन ऑफ दिस? तो उनको बुक कहाँ मिलती थी? कंप्यूटर स्क्रीन पर. जैसे ही वो क्लिक करके जो भी ऑर्डर पास करते थे, जिस भी बुक को देखना चाहते थे, वैसा ही वो कमांड करते थे कंप्यूटर को. एंड बाय हैविंग द कमांड फ्रॉम द person, computer showed them the same type of book as per the command of the person. एक व्यक्ति की कमांड पर वैसे ही वो बुक दिखा देता था. नेक्स्ट, who went
टू स्कूल, स्कूल कौन गया? मार्गी, टॉमी, बोथ ए एंड बी और मार्गीज एंसेस्टर, यानी स्कूल कौन जाते थे? तो स्कूल मार्गी के एंसेस्टर, एंसेस्टर मीन पूर्वज, ये वर्ड नई टर्म हो सकती है आपके लिए, कुछ बच्चों के लिए। एंसेस्टर मीन पूर्वज, मार्गी के पूर्वज जो है वो स्कूल जाया करते थे, जो एक सेपरेट बिल्डिंग में होता था, एक अलग बिल्डिंग में होता था, जैसा कि आजकल हमारे यहाँ होता है। Who was the regular teacher who taught the lesson to मार्गी? रेगुलर टीचर कौन होता था जो मार्गी को क्या नाम है लेसन पढ़ाता था? ह्यूमन टीचर होता था या कंप्यूटर टीचर या एलियन टीचर या मैकेनिकल रोबोट टीचर? तो वो होता था मैकेनिकल रोबोट टीचर। ये रिपीट है किसी दूसरी फॉर्म में, दूसरी वर्डिंग के साथ, ऐसा पहले भी आया था एक क्वेश्चन। तो रेगुलर टीचर, हु वाज द रेगुलर टीचर? रेगुलर टीचर कौन होता था जो मार्गी को पढ़ाता था? वो मैकेनिकल रोबोट टीचर होता था, यांत्रिक रोबोट के फॉर्म में एक टीचर जो कंप्यूटर की फॉर्म में होता था। तो यहाँ पर मैकेनिकल रोबोट टीचर, इसको हम बी, इस पार्ट का भी आंसर हम सही मान सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू, बोथ ऑफ द आंसर विल बी राइट एज पर माई थिंकिंग। नेक्स्ट, विद होम इज़ द मैकेनिकल टीचर कॉन्ट्रास्टेड? किसके साथ मैकेनिकल टीचर जो है वो कॉन्ट्रास्टेड किया गया, यानी कॉन्ट्रास्टेड मीन्स विरोधाभास शो करना। तो किसके साथ कॉन्ट्रास्ट किया है मैकेनिकल टीचर का? ह्यूमन बीइंग टीचर के साथ, ह्यूमन बीइंग टीचर के साथ कॉन्ट्रास्ट यहाँ शो किया गया है, विरोधाभास शो किया गया है। बताया गया है कि ह्यूमन टीचर में क्या कमियां हैं और मैकेनिकल टीचर में क्या कमियां हैं, लाइक दैट। नेक्स्ट, वाई डिड मार्गीज मदर कॉल द काउंटी इंस्पेक्टर? मार्गी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया? टू चेक द फॉल्ट इन मार्गीज टीचर, यानी मार्गी के टीचर में फॉल्ट ढूंढने के लिए ये है। इसलिए काउंटी इंस्पेक्टर मीन्स एनी मैकेनिक, कोई भी मैकेनिक जो उसके टीचर को ठीक कर सके। नेक्स्ट है, इन विच सब्जेक्ट वाज मार्गी फेलिंग रिपीटली? तो वो किस सब्जेक्ट में फेल हो रही थी? जैसा मैंने बताया था समरी डिस्कस करते हुए, तो वो ज्योग्राफी में फेल हो रही थी, क्योंकि geography sector had become fast, due to which it was asking question above than the level of मार्गी का जो लेवल था 11 ईयर का, उससे ऊपर की एज के क्वेश्चन पूछे जा रहा था। वो 14 या 15 ईयर एज के क्वेश्चन पूछे जा रहा था। तो ऐसी एज के क्वेश्चन वो नहीं बता सकती थी, उस क्लास के क्वेश्चन वो नहीं बता सकती थी जिस क्लास के क्वेश्चन वो पूछ रहा था, यानी उनकी क्लास से ऊपर हाई लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा था, जिसके कारण वो जो है बहुत ही ख़राब रिजल्ट दिए जा रही थी। नेक्स्ट, व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प मार्गी? काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया मार्गी की हेल्प करने के लिए? काउंटी इंस्पेक्टर जो मैकेनिक था उसने क्या किया मार्गी की हेल्प करने के लिए? इस रीसेट द मैकेनिकल टीचर, उसने मैकेनिकल टीचर को रीसेट किया। ही चेंज द मॉड्यूल चेंज किया। चेंज मार्गीज ब्रेन, मार्गी का दिमाग चेंज किया। चेंज सिलेबस चेंज किया। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो फर्स्ट होगा। उसने मैकेनिकल टीचर को रीसेट कर दिया, उसको उसकी जो स्पीड थी उसको स्लो कर दिया, और स्पीड स्लो करने से जो है उसका लेवल मार्गी की एज लेवल के अनुसार मैच कर गया। नेक्स्ट, द सेक्शन ऑफ विच सब्जेक्ट गोट completely deleted from Tommy's computer? English, history, social study, geography. The section of which subject got completely deleted from Tommy's computer?
यानी टॉमी के कंप्यूटर से कौन सा सेक्शन जो है पूरी तरह से गायब हो गया था। यहाँ ध्यान रखना है, टॉमी के ये अंडरलाइन किया हुआ है, टॉमी के कंप्यूटर से कौन सा सब्जेक्ट गायब हो गया था, तो वो हिस्ट्री सेक्टर गायब हुआ था टॉमी के कंप्यूटर टीचर से। सो आई थिंक you like this video and you are asking again and again what type of exam pattern will be there. So I want to make it clear for you that both type of exam system will be there. This will have we can say Google form tests as well as other 4 or 5 question will be there in subjective form. Google type question paper will be there in MCQ type question. वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में होगा 20 मार्क्स का, और 20 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव जो है सब्जेक्टिव लेवल का होगा। यानी उसमें आपने जैसे इंग्लिश में लेटर या डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जो आपके सिलेबस में हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, और 3 क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स, 3 क्वेश्चन 5-5 नंबर के होंगे। तो इस तरह से टोटल 20 मार्क्स सब्जेक्टिव टाइप और बाकी जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। सो यू विल प्रिपेयर योरसेल्फ properly and whatever the subjective paper you have to answer those questions by writing your answer, but Google form test, in such type of test you have to tick the correct option. Okay, thank you.